Marka-e-Haq, Operation Bunyan Marsoos, has further strengthened the trust and confidence of the people of Pakistan on the competence and far-reaching capabilities of its armed forces. By neutralizing all threats with remarkable professionalism, downing advanced assets like Rafale, targeting multiple bases including S-400s, and showcasing multi-domain warfare capabilities, Pakistan has displayed its capabilities and will to defend. ہم کسی سے نہیں ڈرتے، پوری طرح تیار ہیں، مقدس سرزمین کا 1 انچ بھی دشمن کے حوالے نہیں ہونے دیں گے۔ بھارت نے دوبارہ جارحیت کی تو پہلے سے زیادہ شدید رد عمل ہوگا اور اس کا ذمہ دار بھارت ہوگا۔ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر، چیف آف آرمی اسٹاف کا پی ایم اے کی پاسنگ آؤٹ پریڈ سے تاریخی اور غیر مبہم خطاب، کہا معرکہ حق میں افواج پاکستان نے اپنے سے کئی گنا بڑے دشمن کو شکست دی، قوم کا اعتماد مستحکم کیا، دشمن کے رافیل طیارے مار گرائے، دشمن کی کئی بیسز تباہ کر دی۔ پاکستان نے ایسے دشمن کے خلاف کامیابی حاصل کی جو اپنی گمراہ کن بالادستی کے غرور میں مبتلا تھا۔ آرمی چیف نے واضح کر دیا کہ آئندہ کشیدگی ہوئی تو بڑی تباہی ہوگی۔ دشمن فتنہ الہند اور فتنہ الخوارج کو ہارڈگنز کے طور پر استعمال کر رہا ہے۔ دشمن کا بزدلانہ، منافقانہ اور گھناؤنا چہرہ دنیا کے سامنے بے نقاب ہو گیا۔ پاکستان میں دہشت گردی کے لیے افغان سرزمین کا استعمال پریشان کن ہے۔ ہم اسلام کی غلط تشریح کرنے والے مٹھی بھر گمراہ دہشت گردوں کے آگے نہیں جھکیں گے۔ آرمی چیف نے واضح کر دیا، دو ٹوک الفاظ میں کہا، طالبان رجیم اپنی پراکسیز کو لگام ڈالے، یہ پراکسیز پاکستان میں گھناؤنے حملے کر رہی ہے، افغانستان کی سرزمین استعمال کر رہی ہے۔ قانون نافذ کرنے والے ادارے، مسلح افواج پاکستان کے بہادر عوام کے تعاون سے اس لعنت کو بھی شکست دیں گے۔ افغان شہری دائمی تشدد کے بجائے باہمی سلامتی کا انتخاب کریں۔ سعودی عرب سے دفاعی معاہدہ پاک سعودی بھائی چارے کی بہترین مثال ہے۔ حرمین شریفین کے دفاع کے لیے خدمات پیش کرنا پاکستانیوں کے لیے باعث افتخار ہے۔ پاکستان نے ایران کے ساتھ مذاکرات کے پرامن عمل میں بھی کردار ادا کیا۔ مسلم ممالک کے ساتھ پاکستان کے تعلقات تیزی سے فروغ پا رہے ہیں۔ آرمی چیف کا خطاب، کہا چین کے ساتھ اسٹریٹجک شراکت داری پر فخر ہے، امریکہ کے ساتھ تعلقات کو دوبارہ متحد کرنا خوش آئند ہے۔ تنازعات کے شکار لوگوں میں امن کے لیے صدر ٹرمپ کی کوششیں قابل تعریف ہیں۔ پاکستان توقع کرتا ہے جنگ بندی جاری رہے گی، غزہ کی بحالی ممکن ہوگی۔ پاکستان کشمیر سے متعلق اپنے اصولی موقع پر ثابت قدم ہے۔ مقبوضہ کشمیر میں بھارتی سرپرستی میں دہشت گردی مظالم کا خاتمہ ہونا چاہیے۔ پاکستان اور افغانستان کے درمیان جنگ بندی میں دوحہ مذاکرات کے اختتام تک توسیع، افغان طالبان کی ثالثی کی درخواست پر قطر کا حکومت کا رابطہ، برادر ملک قطر کی پیشکش کا احترام کرتے ہیں۔ اگر افغان سرزمین دہشت گردی کے لیے استعمال ہوتی رہی تو بات چیت ممکن نہیں۔ پاکستان کا دو ٹوک موقف، دونوں ملکوں کے درمیان مذاکرات آج شروع ہونے کا امکان۔ حکومت کا افغان مہاجرین کو کسی بھی قسم کی اضافی مہلت نہ دینے کا اعلان، صرف انہی افغان شہریوں کو اجازت ہوگی جن کے پاس پاکستانی ویزا ہوگا۔ وزیر اعظم کی زیر صدارت افغان پناہ گزینوں کی وطن واپسی کے حوالے سے اعلیٰ سطح کا اجلاس، اعلامیہ جاری۔ شہباز شریف کا کہنا تھا کہ کب تک افغان مہاجرین کا بوجھ اٹھائیں گے، افغانستان کی ہر مشکل وقت میں مدد کی، وہاں سے حملہ ہونا تشویشناک ہے۔ پانچ دہائیوں کی زبردستی مہمان نوازی ختم کرنے کا وقت آ گیا۔ کابل سے امن کی بارہا کوششوں کے باوجود مثبت رد عمل نہ ملا۔ وزیر دفاع خواجہ آصف کہتے ہیں ملک میں دہشت گردی کے واقعات میں 3000 سے زائد شہادتیں ہوئیں۔ ادھر ترجمان دفتر خارجہ شفقت علی خان نے افغانستان میں فتنہ الخوارج کی موجودگی پر گہری تشویش کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ دہشت گردی کے منبع کو اب بھاری قیمت چکانی ہوگی۔ بلوچستان کے سرحدی شہر چمن میں پاک افغان بارڈر
झड़पों के बाद छठे रोज भी बंद, तिजारती सरगर्मियां मुअत्तल और सैकड़ों ट्रक दोनों जानिब फंसे हुए हैं। अफगान हदूद में 300 से ज्यादा ट्रक अंगूर, अनार और दीगर फलों से लदे खड़े हैं। ताजिरों के मुताबिक बंदिश से करोड़ों रुपए का नुकसान हो चुका है और फल खराब होने के खदशात बढ़ गए हैं। ताजिरों ने मुतालबा किया कि बाब दोस्ती को आर्जी तौर पर खोला जाए ताकि फंसे हुए ट्रक निकाल कर तिजारत बहाल की जा सके। अगर मैं चाहूं तो पाक अफगान तनाज़ा खत्म कराना बहुत आसान है, अमरीकी सदर का दावा। डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं पाकिस्तान और भारत के दरमियान एटमी तसादुम रुकवाया, नोबेल इनाम के लिए नहीं जिंदगियां बचाने के लिए जंगें रुकवा रहा हूं। अब तक 8 जंगें रुकवा चुका। यूक्रेन और रूस की जंग बंद हुई तो ये 9वीं होगी। मेरा ख्याल है पुतिन जंग खत्म करना चाहते हैं, ज़ेलेंस्की भी ऐसा ही चाहते हैं। टीएलपी का एहतजाज, पंजाब भर में क्रैकडाउन, लाहौर से गिरफ्तार अफराद की तादाद 624 से जायद हो गई। सूबे में 5100 मुल्जिमान को हिरासत में लिया गया। तोड़फोड़ और सरकारी अमलाक को नुकसान पहुंचाने के केस में 11 मुल्जिमान का 10 रोजा जिस्मानी रिमांड मंजूर। वफाकी पुलिस का टीएलपी के खिलाफ पुराने मुकदमात दोबारा खोलने का फैसला। मुकदमात में नामजद मुल्जिमान में से 171 को धर लिया गया। पाकिस्तान मिलिट्री एकेडमी काकोल में कैडेट्स की पुरवकार पासिंग आउट परेड। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की पासिंग आउट परेड में बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत। फील्ड मार्शल ने पासिंग आउट परेड का मुआयना किया। आला कारकर्दगी दिखाने वाले कैडेट्स में एजाजात भी तकसीम। पास आउट होने वाले कैडेट्स में 152 PMA लॉन्ग कोर्स, 37वीं टेक्निकल ग्रेजुएट कोर्स, 71वीं इंटीग्रेटेड कोर्स और 26वीं लेडी कैडेट कोर्स के कैडेट शामिल। से सिंध और वफाक के दरमियान पेट्रोल मसनूआत सरचार्ज पर शदीद कशीदगी। सिंध हुकूमत ने 3 रुपए फी लीटर वसूली शुरू कर दी। सरचार्ज अदा न करने वाली कंपनियों पर तरसील की पाबंदी का ऐलान। ऑयल मार्केटिंग कंपनियों का एहतजाज, इक़दाम को आईनी दायरा कार से तजावुज़ करार दिया। मुल्क में पेट्रोल मसनूआत के बहरान और कीमतों में इजाफे का खदशा। लाहौर में फ़िज़ाई आलूदगी में खतरनाक हद तक इजाफा। दुनिया के आलूदा तरीन शहरों में लाहौर का दूसरा नंबर। हवा में आलूदा ज़रात की मिक़दार 201 पार्टिकुलेट मीटर्स रिकॉर्ड। माहिरीन के शहरियों को एहतियाती तदाबीर अपनाने की हिदायत। घरों से निकलते वक्त मास्क लगाने की भी तजवीज़। कराची के इलाके सोल्जर बाजार नंबर 1 की मरकजी सड़क तवील अरसे से खस्ता हाली का शिकार। जगह जगह गड़े, गंदा पानी जमा होने से शहरी अजियत में मुब्तला। कहते शिकायत करके थक गए, किसी को आवाम की परेशानी का एहसास ही नहीं है। जहांगीर रोड भी खस्ता हाली की बदतरीन मिसाल बन गया। शहर में मच्छरों के बाढ़ तेज, डेंगू और मलेरिया के बाद चिकनगुनिया भी फैलने लगा। सरकारी और निजी अस्पतालों में मरीजों का रश बढ़ गया। जिन अस्पताल में रोजाना 8 से 10 चिकनगुनिया के मरीज रिपोर्ट होने लगे। डॉक्टर्स के मुताबिक हर माह वायरल फीवर के 70 से ज्यादा केसेस सामने आ रहे हैं। अक्टूबर और नवंबर में डेंगू, मलेरिया और चिकनगुनिया के केसेस बढ़ते हैं। शहरी एहतियाती तदाबीर अपनाएं। कराची के इलाके सुपर हाईवे जमाली गोट न्यू के करीब फायरिंग, एक शख्स कत्ल और एक जख्मी। लाश और जख्मी को अब्बासी शहीद अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। रेस्क्यू जराये के मुताबिक मकतूल की शनाख्त 55 साला जलाद खान वल्द मोहम्मद शाह के नाम से हुई। 22 साला इज्जत खान वल्द जलाद खान जख्मी हुआ। वाक़े में जाबहक और जख्मी होने वाले दोनों बाप बेटा हैं। ताने कारसाज की दिल दहला देने वाली दर्दनाक दास्तान, जख्म आज भी ताज़ा। 18 अक्टूबर 2007 को बेनज़ीर भुट्टो के काफिले को कराची में दहशतगर्दी का निशाना बनाया गया। साबिक वज़ीर आज़म तवील जलावतनी खत्म करके कराची पहुंची, जहां उनका शानदार इस्तकबाल किया गया। काफिला शार फैसल पर कारसाज के करीब पहुंचा तो 2 बम धमाके हो गए। वाक़े में 150 से ज़ायद अफराद शहीद और 500 से ज़ायद जख्मी हुए। इसराइली फौज की एक बार फिर जंगबंदी मुआहदे की खिलाफ वर्जी। गजा में गाड़ी पर फिजाई हमले में एक ही खानदान के 11 अफराद शहीद।
7 बच्चे और 3 खवातीन शामिल। हमास की जारियत की शदीद मजम्मत, कहा कि इसराइल दानिस्ता तौर पर निहत्ते शहरियों को निशाना बना रहा है। हमास ने जंगबंदी के तहत एक और इसराइली यरगमाली की बाकियात हवाले कर दी। मुतालबा किया कि सरहदें खोली जाएं ताकि इमदाद गजा पहुंच सके। गजा सिविल डिफेंस के मुताबिक मलबे तले अब भी 10,000 से ज़ायद लाशें दबी हैं। गजा में जंगबंदी के बाद तामीर नौ का 5 साला मनसूबा। फलस्तीनी अथॉरिटी ने 67 अरब डॉलर लागत का 3 मरहलों पर मुश्तमिल प्रोग्राम का ऐलान कर दिया। अक़वाम मुत्तहिदा का 5.5 करोड़ टन मलबा हटाने की ज़रूरत पर जोर। फ्रांस, बरतानिया और अमरीका की बैनुल-अक़वामी फोर्स की तश्कील के लिए काम शुरू। सलामती काउंसिल में करारदाद की तैयारी। गजा में इमदाद बहाल ना हो सकी, इसराइल के सिर्फ चंद ट्रक ले जाने की इजाज़त। ICC T20 वर्ल्ड कप 2026 के लिए टीमों की लाइनअप मुकम्मल। टूर्नामेंट में दुनिया भर की 20 टीमें हिस्सा लेंगी। भारत और श्रीलंका मेज़बान होंगे, जबकि अफगानिस्तान, ऑस्ट्रेलिया, बांग्लादेश, इंग्लैंड, जनूबी अफ्रीका, अमेरिका और वेस्ट इंडीज़ गुज़िश्ता वर्ल्ड कप की टॉप टीमों की हैसियत से शरीक होंगे। पाकिस्तान, न्यूजीलैंड और आयरलैंड रैंकिंग की बुनियाद पर शामिल। कनाडा, इटली, नीदरलैंड, जिम्बाब्वे, नामीबिया, नेपाल, ओमान और UAE रीजनल क्वालिफायर्स के जरिए इवेंट का हिस्सा बनेंगी। कौमी टीम का जनूबी अफ्रीका के खिलाफ वाइट बॉल सीरीज के लिए LCCA ग्राउंड में ट्रेनिंग कैंप। खिलाड़ियों की हेड कोच माइक हैसन की निगरानी में बैटिंग बॉलिंग की प्रैक्टिस, बैटिंग बॉलिंग और फील्डिंग की मशकें। कैंप में साइम अयूब, हसन नवाज, हारिस रऊफ, नसीम शाह, मोहम्मद हारिस, साहबजादा फरहान, मोहम्मद नवाज और दीगर खिलाड़ी शामिल। सीरीज के लिए स्क्वाड का ऐलान जल्द मुतवक्किल है।